Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I'm the Director of Operation at Echo Pakistan Echo. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Please try to join the session through the iEcho email link to mark your attendance. We are also thankful to Ferosan Laboratories Private Limited for their unrestricted educational grant. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project Echo, based in USA, intending to disseminate knowledge and best practices. Parsa Echo Pakistan started as a hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. We are following the guidelines of Project Echo with the objective that community providers learn through video technology to participate in guided practice with specialist mentors. They acquire new skills that allow them to treat patients otherwise referred out. Patients with chronic condition get high quality care without travel and waiting. We do protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage uh, participation. So you can unmute yourself a question or use the raised hand or option or chat in the chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on request. For CME credits, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Jinas and Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 24 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For convenience of participants, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert for today's session is Professor Dr. Kashif Malik, is a distinguished figure in the field of gastroenterology, holding the prestigious designation of FCP Gastroenterology Hepatology at Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute and Sheikh Khalifa bin Zayed Medical and Dental College in Lahore. Professor Malik brings a wealth of expertise and leadership to his role, with a focus on advancing medical knowledge and providing exceptional patient care. Dr. Malik has made significant contributions to the field. Now hand over to Professor Kashif Malik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for this nice introduction. Hospital, the topic which has been assigned to me is basically hepatitis B virus infection in pregnancy, breastfeeding, and children. So I would like to start with my presentation with a brief introduction of hepatitis B. आप शेयर करेंगी या मैं खुद शेयर कर लूँ यहाँ से? आशिफ आप खुद शेयर करो। अगर आप खुद शेयर करो, आप देख सक रहे हैं मेरी कि नहीं? अभी नो नहीं, नहीं, आप अभी मैं नहीं। शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से असल में अननोन ये हो नहीं रही मेरे पास है ना। यहाँ शेयर डॉक्यूमेंट्स अभी देख लेते हैं। आप शेयर कर लें, मैं टाइम लगेगा इसमें, नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी हाँ, वो मेरी है उसके पास। जी जी उजैर, वो शेयर कर दो बेटा। इसको बड़ी कर दो। फर्स्ट पे चले जाओ, पहली पे। नहीं, पहले पे जाओ, ये तो एंड पे आ गए हो बेटा। फिर लास्ट में है विच। यस, ये फिर अब स्लाइड आगे करते जाना आप, ठीक है? So, to start with the name of Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Next slide, please. So, what is hepatitis B? Hepatitis B infection is basically caused by hepatitis B virus, and according to the data, 350 million people are infected worldwide. That is 75%
इसमें और एक मिनट, यस मेरी स्लाइड पे मेरी तस्वीर आना शुरू हो गई, इसको मैं सिंगल कर लूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सो 350 million people are infected worldwide, 75% of which are in the Asia। एशियंस हैं ज़्यादातर जो है इसमें, चाइना में भी है और बाकी एशिया में भी है, पाकिस्तान इंडिया भी इसमें का मेजर जो है वो कंट्रीब्यूटर हैं दिस हेपेटाइटिस बी के लिए। एंड इट्स अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम काजिंग क्रॉनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है जिसको हम देख लें तो हमें लग रहा यही होता है कि जब इसे हेपेटाइटिस बी है तो इस हेपेटाइटिस बी से क्या होगा कि इसको आगे चल के क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होगा, उससे इसकी लाइफ जो है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो खराब होगी। एंड आफ्टरवर्ड्स जो है इसमें सिरोसिस, और सिरोसिस के ऊपर एक और चीज जो हमें आ रही है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बी में प्रॉब्लम यह है कि सम टाइम विदाउट काजिंग सिरोसिस द पेशेंट मे हैव दिस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इस ह्यूमन कार्सिनोजेन एंड causes up to 80%, who has given a statement that more than 250 million people live with a chronic hepatitis B infection, leading to increasing death each year. Most of the global burden of chronic hepatitis B is due to mother to child transmission at और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेजर बर्डन है वो यही है कि मदर टू चाइल्ड जो है ट्रांसमिशन हो रही है, वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं। और ये एक मेजर इशू है हमारी सोसाइटी में, खास तौर पे वेस्ट में अगर होना हो, यहाँ हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, होता कि ये है तो ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। जी सर, मैं हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही? करे आप ये, तो अगर इस स्लाइड को हम देखें, इसको बड़ी नहीं करोगे तुम? सर वो स्लाइड शो में करता हूँ तो वो आगे मूव नहीं कर रहा अभी। क्यों नहीं कर रहा यार? तो उसको करो ना, तो तुम्हारा क्या फायदा हुआ फिर मुझे? हैं? मैं मुझे बता दो मैंने कैसे स्लाइड शेयर करनी है, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करने लगता हूँ तो वो कुछ और ही आ जाता है सारा कुछ उसमें जो है। सर आप उसको खोल के मिनिमाइज कर लें और स्क्रीन शेयर पे जाके अपनी वो प्रेजेंटेशन शेयर कर दें बस। वो मैं करता हूँ ना बेटा, वो मैंने की हुई है मिनिमाइज। अब ये मसला ये है कि यहाँ पर वो मुझे दे नहीं रहा, इसमें से जो है ना डॉक्यूमेंट्स में मैं जाता हूँ तो ये इधर से न्यू में क्यों करूँगा, इसमें देख लेते हैं। कर नहीं रहा इधर से ना, मेरे इसके ऊपर से जो है। नहीं आ रहा ना, ये मैं फंस गया हूँ इसमें। ये जूम असल में इसमें मैंने अभी किया, तो वो जी आप जहर इस मुझे हेल्प करो। तरह जी उजैर आप इस तरह करो, आप इसको जरा इसको प्ले करें और स्लाइड शो ना करो। आप उसको मिनिमाइज कर लो, वो जो विंडो दूसरी साइड वाली होती है ना, वहां पे मिनिमाइज करके तो उसको प्रोमिनेंट कर लो, उससे ये सही चलेगा। आप स्लाइड शो पे मत जाओ। चलें। ठीक है जनाब, अभी मैं स्टार्ट करूं फिर जी? ठीक। सो अब उजैर किस स्लाइड पे हो आप? सर मैं स्लाइड नंबर 4 पे हूँ। जी आप इसको ये पढ़ा। इसके नीचे रीडिंग व्यू है, अगर उस पर चले जाएं तो उससे भी ये बड़ा हो जाएगा। किसी नेगेटिव के साथ एक रीडिंग व्यू बना हुआ है।
मुझे स्लाइड नजर ही नहीं आ रही ना कोई, चलें इसको देख लेते हैं, ये अब छोटा सा ये सर आगे। अब ओके है सर। तो ठीक है जी। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो जितना येलो नजर आ रहा है, तो कंट्रीज और द एरियाज विद मॉडरेट टू हाई रिस्क। अगर आप इसमें देखिए नेक्स्ट तरह दबा दो तो वो उसमें रेड आ जाएगा कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, यानी जिसमें मॉडरेट टू हाई रिस्क हमारे पास वो ये हेपेटाइटिस बी का है। सो और जैसे मैंने कहा कि इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन का मेजर रोल है, तो अभी नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में हम वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। मुझे अच्छा जी। इसमें अगर अब हम ये वाली देख रहे हैं स्लाइड जैसे है, इसमें अगर देखेंगे तो हमारे पास जैसे मैंने कहा कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, 3 to 5% ऑफ एडल्ट्स एक्वायर द इन्फेक्शन। और बच्चों में ये बड़ा अजीब सा है कि जब किसी को हेपेटाइटिस बी होता है, बड़ों में श्योर के पहले भी डिस्कस हुआ है, तो 10% तक लोगों में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो सकता है, 3 to 5% यूजुअली एक्वायर करते हैं, बाकियों में क्लियर हो जाता है। लेकिन इन्फेंट्स में अदर वे अराउंड, यानी 90 to 95% ऑफ द इन्फेंट्स दे गेट दिस इन्फेक्शन, और उससे जो है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में चले जाते हैं। और दिस क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी देन लीड्स टू इन 5 years जो है सिरोसिस की तरफ 12 to 25% में होता है, एंड देन लिवर फेलियर और हेपेटोसेल कार्सिनोमा डेथ, और मे बी दे आर रिक्वायरिंग transplant in the future. Next, please. सर मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, चलो मैं इसका व्यू कर लूँ, ये मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा। सर आप मेरी हेल्प करेंगे? जी डॉक्टर साहब, इसका जो है वो काशिफ इस स्लाइड में मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अवॉइड वर्टिकल ट्रांसमिशन टू ये अवॉइड तो एन मैं देख इम्पेयर्ड लेता हूँ, ये तो मैं पढ़ ब्लड। लेता हूँ, असल में आपको मैं नजर आ रहा हूँ इस वक्त सब। जी 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 जी। ठीक है, अच्छा। आई इंपॉर्टेंस कैन ऑफ सी। मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों है? ठीक है जी, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें टू अवॉइड द वर्टिकल ट्रांसमिशन, और टू अवॉइड एनी फ्लेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और टू प्रिवेंट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन चिल्ड्रन। तो इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर आप करेंगे तो उसमें देखें कि प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इज नीडेड, बिकॉज इन अनमैनेज्ड hepatitis B infection, 20 to 40% risk of infants infection from hepatitis B surface antigen positive mother by the 1 year of age, और 70 to 90% रिस्क ऑफ इन्फेंट इन्फेक्शन फ्रॉम HBe एंटीजन पॉजिटिव मदर। अगर तो पेशेंट सिर्फ HBsAg पॉजिटिव होगी तो 20 to 40% चांस है कि उसको हेपेटाइटिस बी होगा। लेकिन अगर उसको ई एंटीजन भी पॉजिटिव है तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, और उनके अंदर जो है आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा सा डाटा मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, ये डिफरेंट उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने देखा है कि दो चीजें आप देखेंगे इसमें, बल्कि रादर तीन चीजें। एक HBsAg की पॉजिटिविटी, उसके अलावा HBe एंटीजन, और तीसरा जो है हेपेटाइटिस बी वायरस DNA। अगर हम इसे देखें तो उसमें अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में अगर नजर आ रहा है आपको, तो उन्होंने HBsAg पॉजिटिव जो थे पेशेंट्स, उनमें जो थी इनकी फेलियर रेट जो था अमीनो प्रोफिलैक्सिस फेलियर बेस्ड ऑन HBe एंटीजन सीरो स्टेटस एंड ये, यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन के साथ जो हुई है, तो उन्होंने देखा कि अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो 3.1% जो है लोगों में मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हुई है। लेकिन अगर ई एंटीजन पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर वो 5.6% पे है। और HBV DNA अगर पॉजिटिव है तो उनमें 4.8% के अंदर उन्होंने फेलियर रेट हुआ। यानी वर्टिकल ट्रांस एक किसी को भी पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वायरस का लोड बढ़ता गया, जिनके पास हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है,
तो उनमें रिस्क कितना है। फिर उसके साथ हम ई एंटीजन भी चेक करते हैं और एचबीवी डीएनए चेक करते हैं। तो जितने सरफेस एंटीजन जो पॉजिटिव है उनमें रिस्क कम होगा, लेकिन अगर ई एंटीजन पॉजिटिव होगा और वायरस का लोड 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा होगा तो रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इंक्रीज रिस्क इस एक और स्टडी है जिसमें भी यही चीज बता रहे हैं कि जब आपके मैटरनल एचपीवी डीएनए जो है वो 2 लाख से नीचे यानी 6 लाख का कप से नीचे होगा तो रिस्क कम है, लेकिन जैसे जैसे वो वायरल लोड ऊपर बढ़ेगा तो उसमें हमें जो है पेशेंट के अंदर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिलेगा जब हम उसको पोस्ट मतलब जब भी चेक करेंगे डिलीवरी के बाद जब करते हैं तो उसमें HbsAg पॉजिटिव जो है ज्यादा मिलेगा हमें उन पेशेंट्स के अंदर जिनके मदर्स के अंदर हाई वायरल लोड होंगे। तो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ टू ट्रीट दिस मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट प्लीज। ये एक और डाटा उन्होंने दिया है कि जो लिमिटेड डाटा ऑन एचपीवी डिजीज, ये क्लिनिकल केयर ऑप्शन से ये स्लाइड हमने ली थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो क्यों हमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसको ट्रीट करें। उसने कहा कि मैटरनल इम्यून सिस्टम एंड हार्मोन लेवल्स आर मॉडिफाइड ड्यूरिंग पेरीपार्टम पीरियड, यानी वो थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। वायरल रेप्लिकेशन में इंक्रीज, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि वो एकदम लोड ऊपर होगा और वो ट्रांसमिशन उसकी हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है, प्रोग्रेशन ऑफ पोस्टमार्टम फ्लेयर और हेपेटिक डीकम्पनसेशन अकर रेयरली, लेकिन बी वेयर ऑफ द एडवांस लिवर फाइब्रोसिस। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अगर ऑलरेडी किसी को हेपेटाइटिस बी है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो हमें ज्यादा केयरफुल होना है कि उन लोगों को हमने ट्रीट करना है। सो ईजल की गाइडलाइन के मुताबिक जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि जी आप जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर फीमेल जो पेशेंट जो मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें आपने सरफेस एंटीजन जरूर चेक करना है। हम बी और सी के लिए चेक करते हैं, रेगुलरली चेक करते हैं, ये हमारी आजकल गाइडलाइंस में भी और रूटीन भी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट भी इसको करती हैं। Then comes the evaluate the treatment indicators as for non-pregnant. Yani if she was not pregnant and she is having chronic hepatitis B और एक्टिव है, वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तो उसको ट्रीट करना जो है वो आपने उसी तरीके से ट्रीट करना है। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो वो है जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, साथ उनको सिरोसिस है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के साथ फाइब्रोसिस हुई है, उनकी ट्रीटमेंट जरा डिफरेंट हो जाती है। लेकिन ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज जिनमें अगर हम देखें कि उनको एज सच ट्रीटमेंट के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जरा सा क्राइटेरिया को चेंज करते हैं और उसी हवाले से उनको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कहते हैं कि जी अगर तो जैसे मैंने कहा, जस्ट रिपीटेशन है कि प्रेग्नेंट वुमेन विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड एडवांस फाइब्रोसिस और सिरोसिस, उनको आपने ट्रीटमेंट देनी है। ट्रीटमेंट हमारे पास जो ड्रग्स अवेलेबल है, आई एम श्योर कि ज्यादातर लोगों को पता होगा कि हमारे पास एक एंटेकाविर होती है, एक टनिफोविर है और एक टनिफोमाइड है। 3 ड्रग्स हैं जो यूजुअली सेफ बताई गई है। वो कहते हैं कि अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, फाइब्रोसिस है, तो आपने उसको टेनिफोविर से ट्रीट करना है 300 मिलीग्राम डेली। अगर ऑलरेडी उस पर प्रेगनेंसी के टाइम पर ले रही थी पेशेंट तो आपने कंटिन्यू करना है, इट्स सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन अगर वो कहते हैं कि एंटेकाविर पे है या किसी और ड्रग पे है तो फिर आप उसको स्विच करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू टेनिफोविर। और वेन एवर ट्रीटमेंट इज नॉट इंडिकेटेड, तो इफ प्रोफिलैक्टिक टीडीएफ इज इंडिकेटेड, ये हम देखेंगे वो आगे चल के कि हमने वो टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ इम्यूनाइजेशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम फिर इसको ये मेजर हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, ये एक और स्टडी थी जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आई हुई है, पुरानी स्टडी 2018 में आई थी कि उन्होंने देखे, अगर आप देखेंगे टीडीएफ जो है वो प्रोफिलैक्सिस जिनको दी गई है थर्ड ट्राइमेस्टर में, उनमें जीरो ट्रांसमिशन है। और स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक चाइना की है इनकी, एक थाईलैंड की है। दोनों में देखें कि जिन लोगों को थर्ड ट्राइमेस्टर में उन्होंने टेनिफोवेर या टीडीएफ दी है, उनमें ट्रांसमिशन दोनों तरफ जो है जीरो हुई है, मदर टू चाइल्ड जो है एचबीवी ट्रांसमिशन। तो ये बड़ा एक जो है हमारे लिए इनकरेजिंग किस्म का डाटा है कि अगर हम इन पेशेंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर में
टीडीएफ देंगे तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मदर टू चाइल्ड एचपीवी ट्रांसमिशन। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज की गाइडलाइंस कहती हैं कि जी एचपीवी थेरेपी सजेस्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एचपीवी डीएनए मोर देन 200,000। जैसे वो 6 लाख की मैंने बात की थी कि अगर 2 लाख से ऊपर है और इसमें जो है आपने उनको देना है। इसके अलावा उन्होंने कहा, और वही वाली बात है, वो भी वही कह रहे हैं कि टीडीएफ इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ हाई बैरियर टू वायरल रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश्ड सेफ्टी। In most studies, antiviral initiated 28 to 32 weeks of gestation and discontinued 3 months postpartum। ये जो है उनकी इसमें भी दो थॉट हैं। एक ये कहते हैं कि अब आप जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी स्टॉप कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि 3 मंथ पोस्टपार्टम टिल द टाइम कि बच्चे की इम्यूनाइजेशन फॉर हेपेटाइटिस बी कंप्लीट हो जाए। तो इसके साथ साथ जो है उन्होंने क्या, व्हेन ट्रीटमेंट स्टार्ट मॉनिटर एएलटी फ्लेयर्स एवरी 3 मंथ्स फॉर 6 मंथ्स। यानी दो दफा आप चेक करेंगे कि उनके एएलटी दोबारा बढ़ तो नहीं गए जब आपने उनकी मेडिसिन बंद की है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ मैंने एक ग्राफ सा बनाया है, इसमें जैसे वही वाली बात है कि ईजल कहती है, जो यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज, ये कहती है कि जो रिकमेंडेड प्रेग्नेंट वुमेन एट 24 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विद हेपेटाइटिस वायरस का जो बी का लोड है 2 लाख से ऊपर होगा, और या सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव जो है 4 लाख ऊपर हो, और कंटिन्यू अप टू 12 वीक्स। जैसे मैंने कहा है कि यानी आप स्टार्ट करें 24 to 28 वीक्स पे एंड देन कंटिन्यू 3 मंथ्स पोस्टपार्टम। अगेन डबल एसिडिटी तकरीबन यही बात कह रहे हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में करें 200,000 से आता हो। डब्ल्यूएचओ की पहले रिकमेंडेशन कुछ और थी, ये मैंने अभी चेंज किया, ये रिसेंटली 2024 में जो इनकी आई है, उन्होंने इंटरेस्टिंगली कहा है कि जी आप सेकंड ट्राइमेस्टर में शुरू कर दें, और एटलीस्ट टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है आप इनको प्रोफिलैक्सिस दें। अपाजल जो एशिया पैसिफिक की है वो भी यही 28 to 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, वो भी 2 लाख के ऊपर है, और ट्रीटमेंट कुड बी कंसिडर लोअर एच। अच्छा जी, अब एक बात हो गई कि हेपेटाइटिस बी की जो ट्रांसमिशन को रोकने के लिए थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, उसका एचपीवी डीएनए 2 लाख से ऊपर है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, एचपीवी डीएनए 2 लाख से ऊपर, और ई एंटीजन पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर इट इज, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने उनको टीडीएफ देनी है। 300 मिलीग्राम डेली देंगे। उजैर और नेक्स्ट स्लाइड जरा कर दो प्लीज, ये स्टक हुआ हुआ है। ये है जी वो न्यू बॉर्न पे हम जाएंगे, वो कर ले उसमें, तो उसमें ये उन्होंने बता दिया कि जी इस तरीके से कर लें। अब फिर भी बेबी को प्रिवेंट तो हमने करना है ना, सो अब हम आ जाते हैं बेबी की तरफ। बेबी को कैसे प्रिवेंट करेंगे? उसमें ये है कि उसकी जो है सबसे अमीनोग्लोबुलिन्स लगते हैं, और फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको लगाना है, और इसमें विद इन 12 सॉरी आवर्स आप उसको। काशिफ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आपकी स्लाइड इस वक्त मैच नहीं कर रही। इस वक्त ये लिमिटेड डेटा ऑन एचपीवी डिजीज कोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ रही है, तो आप न्यूबॉर्न पे है। उजैर जरा काइंडली चेक कर लो। मेरे ख्याल में मेरा जो है ना वो 1 मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है, मैं ये जो 1 मिनट में। सही। नहीं, ये आपने गाइडलाइंस दे दी ना, इसके बाद क्या आई है? ये आप ठीक है सर, पहले स्लाइड लैग कर रही थी। ये अच्छा वाली जी, ये स्लाइड है, न्यूबॉर्न केयर टू प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। जी 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 काशिफ प्लीज। जी हाँ। तो इसमें यह है कि आपने जो बेबी होगा उसको विद इन 12 आवर्स, प्रेफरेबली इफ दे कैन अफोर्ड, गो विद द अमीनोग्लोबुलिन्स जो कि रिकमेंडेड हैं उनके 0.06 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हवाले से आपने उसको देने हैं प्रोफिलैक्टिक अमीनोग्लोबुलिन्स, और उसके साथ साथ फर्स्ट डोज ऑफ जो है एचबीवी वैक्सीनेशन जो है आपने उसको लगानी है। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ जाता है कि वो इम्यूनोग्लोबिन बड़े महंगे होते हैं। अब हम लोकल उस पे आ जाएं तो उसमें भी वो ये कहते हैं कि अगर एच बी एस ए जी पॉजिटिव है तो इवन उसमें यही है कि बाकी तो अपने मदर को तो वो दे दी पहले, एंड सेकंड थिंग इज कि आप उसको फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो दे दें अगर इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल नहीं है। हमारे लोकल सेटअप में हम यही करवाते हैं कि उनको पेशेंट जो लेडी है उसको तो हमने
TDF पे रखा और टेनिफोविर, और उसके बाद हम उसके बेबी को जो है फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ब्रेस्ट फीडिंग पे हम आ गए। अब इसमें जो है, अब दो तीन चीजें हैं। पहले हमारा ये मिथ थी कि हम कहते थे कि इनको आप फीड ना कराएं। WHO कहता है कि आप फीड करवाएं, और वैसे भी जो सोसाइटीज हैं वो ये बता रही हैं कि ट्रांसमिट नहीं होता थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग। और जो है उसमें अगर एक्सेप्ट, वो कहते हैं कि अगर तो मदर के निपल क्रैक और उसमें कोई ब्लड वगैरह या कुछ ऐसा है तब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज बेबी को फीड करवाएं। और दूसरी बात यह है कि अनसर्टेन एंटीवायरल थेरेपी, लेकिन ये उसने कहा है कि टेनिफोविर जो डिटेक्ट होती है ब्रेस्ट मिल्क में, बट एक्सपोजर टू इन्फेंट इज लो ड्यू टू द लिमिटेड ओरल बायोअवेलेबिलिटी। और प्रोफिलैक्सिस का जो है वो उसी तरीके से दो गाइडलाइंस है, लेकिन 12 हफ्ते का ज्यादा उसको प्रेफर किया जाता है कि 12 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी जो है आपने टेनिफोविर देनी है। सो यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज सेफ, बेबी शुड बी ब्रेस्ट फेड। और एंटीवायरल जो हम दे रहे हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी ओरल कम है, इसलिए बेबी को हार्म नहीं हो सकता उससे। सो तो ये दो चीजें करनी है कि ब्रेस्ट फीडिंग, एक ही स्लाइड भी हमें बात बात चल जाती है कि आप करवा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट प्लीज। ये WHO रिकमेंडेशंस वाली आई है। हाँ जी, जी। ये WHO जी, रिकमेंडेशन ये लेटेस्ट जो 2024। अभी आई है, जो हम जिसको हम फॉलो अप करेंगे, इसमें ये इन्होंने मार्च में ही शायद की थी, कि फरवरी मार्च में आई है। और इसमें तो हमारे पाकिस्तान के सईद हामिद साहब भी शामिल थे, फिर सारा इसको पढ़। इन्होंने तो ये कहा है कि जी रिकमेंडेशन जो TDF प्रोफाइलैक्सिस HbsAg पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन विद HPV DNA मोर देन 200,000 और मोर और who are HBe antigen positive is unchanged from 2022 guidelines। यानी वही जो सेम चीज थी कि आपने इसको थर्ड ट्राइमेस्टर में देना है। टू एड्रेस द कंटिन्यूड चैलेंज इन एक्सेसिंग, अब वो कहते हैं कि जब आप एक्सपेंसिव है BDNA कराने का, एंटीजन कराने का, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज to look for the eligibility for antiviral prophylaxis. A new conditional recommendation provides the additional option of using antiviral prophylaxis in all of the HbsAg pregnant mothers। ये बहुत पहले हमारे कुछ सीनियर्स भी कहा करते थे कि एंड में हम आ जाएंगे कि सरफेस एंटीजन जिसका भी पॉजिटिव है उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। WHO ने यह कहा है कि अगर आप BDNA और एंटीजन नहीं करवा सकते और आपको लगता है कि हमने प्रिवेंट करना है, तो आप थर्ड ट्राइमेस्टर में, रात उन्होंने जो सेकंड ट्राइमेस्टर में कहा कि आप इनको जो है मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ प्रोफाइलैक्सिस इज प्रेफरेबली फ्रॉम द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने थोड़ा और पीछे ले गए हैं कि आप, क्योंकि दवाई अब सस्ती हुई है, तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पर दे दें और उसको आफ्टर द टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी और जो है पोस्ट 3 मंथ्स पोस्टमार्टम जो है वो करते हैं। और the guideline also provide the option to continue TDF for mother who meet the criteria for antiviral therapy for their own health and among women of childbearing age planning additional pregnancy। तो वो कह रहे हैं अगर उसको हेपेटाइटिस बी के लिए जरूरत है तो फिर आप TDF उसकी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, अब इसमें जो ये स्लाइड है, अगर हम इसको देखें, ये मैं जरा अपने इस पे से कर लूं बड़ी। हाँ जी, तो इसकी एल्गोरिदम को जस्ट रिपीटेशन है जो मैंने पिछले 15 मिनट में कहा है कि अगर तो HbsAg पॉजिटिव आ जाता है, आप सबसे पहले आप चेक करें उसका। और मैं कोई भी मेथड यूज करें, स्क्रीनिंग कर लें, एलाइजा भी कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अगर पॉजिटिव है तो आइडियली HBV DNA का लोड करवाएंगे आप और एंटीजन स्टेटस देखेंगे। और आज तो असेस फॉर सिरोसिस, समटाइम पेशेंट्स कम्स टू अस विद फ्रैंक सिरोसिस है। रिसेंटली एक पेशेंट आई, प्रेग्नेंट है और सिरोटिक हुई हुई है, एसाइटिस भी बना हुआ है, तो हमारे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम उसमें बन रहा था, वो हम मैनेज कर रहे हैं उसको। लेकिन ये प्रॉब्लम होता है जब बाज दफा जब हम देखते हैं उसको। तो BDNA अगर 200 से नीचे है और विदाउट सिरोसिस है तो नो मैटरनल टेनिफोविर प्रोफिलैक्सिस के लिए भी वो एक बात करते हैं। लेकिन अब WHO की हमें थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, ये रिसेंट, ये पुरानी जो थी उसमें थी। BDNA जो है HIV DNA नहीं है, HBV DNA है, मोर देन 200,000 है तो फिर आपने देखना है। एंटीजन पॉजिटिव विदाउट सिरोसिस है तो इसमें जो है मैटरनल टेनिफोविर प्रोफिलैक्सिस आप, उन्होंने 28 वीक्स का कहा है। और इसके अलावा अगर मोर देन 20 प्रेजेंस ऑफ सिरोसिस है
और 20,000 से ऊपर वो है तो आपने इसको जो है लॉन्ग टर्म जो है मैटरनल टेनिफोविर ट्रीटमेंट एंड मॉनिटर करना है आपने इसमें। और बेबी के लिए जैसे बताया कि बर्थ डोज आप वैक्सीन देंगे और साथ ही अगर इम्यूनोग्लोबुलिन मिल सकते हैं तो वो देते हैं उसको। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज। इसमें अब बच्चों के लिए हम देख लेते हैं, इसमें इसको इतनी ज्यादा वो उन्होंने नहीं दी हुई है। उसमें कहा है कि जी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी यूजुअली बेनाइन, नेक्स्ट पे कर लीजिएगा, benign and asymptomatic in children as they are generally in the immune tolerant phase. In addition, there are low curative response rate to both nucleoside analog and interferon treatment and concern over long-term safety and risk. For those reasons, conservative approach to treatment generally indicated unless there are other criteria for treatment such as cirrhosis or evidence of severe ongoing necroinflammatory disease on liver biopsy. यूजुअली बच्चों में हमें आमतौर पर जरूरत नहीं होती है, लेकिन अर्ली आइडेंटिफिकेशन करनी है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज के लिए। और अगर जिनकी फैमिली में एचसीसी है या फैमिली में रन करता है तो उसमें एफडीए ने जो अप्रूव किया है एडोलेसेंट्स के लिए टेनिफोविर की है, चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 12 ईयर्स, और इन मार्च 2014 अप्रूव की थी एंटाकाविर आल्सो पेशेंट्स के लिए जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है 2 साल से ऊपर वालों को। तो दो ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 12 साल से ऊपर टेनिफोविर दे सकते हैं और नीचे जो है आप इनको एंटाकाविर भी दे सकते हैं। तो ये दरमियान में जो 2 से 12 साल के दरमियान में वेग एरिया है, लेकिन हम जो इस वक्त दे रहे हैं हम टेनिफोविर भी देते हैं और एंटाकाविर। एंटाकाविर इज वेरी सेफ। हमारे काफी पेशेंट्स हैं जो एंटाकाविर पे हैं और बीडीएनए नेगेटिव है, एएलटी ठीक है। द प्रॉब्लम है इसकी, वो जब हमसे पूछते हैं कि कब तक देना है तो वो फिर उनको कहते हैं कि अभी तक तो खाते रहो जब तक नई दवाई नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इनकी रिकमेंडेशन थी ईजल की, उन्होंने भी यही कहा है कि जो जनरली माइल्ड एंड मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट मीट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इंडिकेशन, द ट्रीटमेंट शुड बी कंसिडर्ड विद कॉशन इन चिल्ड्रन व एडोलेसेंट। वही एंटेकाविर, टेनिफोविर और टैफ और पैग इंटरफेरॉन। पैग इंटरफेरॉन अब तो हम नहीं देते, नहीं है, ये पुरानी इनकी गाइडलाइंस थी 2017 की। अब हम इसमें जो है सिर्फ ओरल पे ही चलते हैं इसमें जो है। नेक्स्ट प्लीज। केस हिस्ट्री आ गई। केस हिस्ट्री के ऊपर अब हम थोड़ा सा जो है देख लेते हैं कि 27-year-old Prami Gravida, 12 weeks of pregnancy, presented to GI clinic at Sheikh Zayed with reports of surface antigen positive, HbS-Ag positive on routine screening. Her examination was unremarkable for chronic liver disease. She was advised ultrasound abdomen and few lab tests. अल्ट्रासाउंड एब्डामिन वाज अनरिमार्केबल। एलएफटीज में ALT 34, AST 28 नॉर्मली है। ALT वैसे फीमेल में वो कहते हैं कि कम लें, लेकिन हम 34 35 तक लेते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेस थोड़ा सा 158 दैट मे बी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। एल्ब्यूमिन इज ओके। BDNA 400,000, ई एंटीजन पॉजिटिव डिजीज है और डेल्टा नेगेटिव है। रिमेंबर जब भी कराएं तो डेल्टा जरूर चेक कर लिया करें, सम टाइम उनके साथ को इन्फेक्शन डेल्टा की होती है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करेगी हमारी इस ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें अलहदा फिर कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, इसमें यही है कि हाउ सीरियस इज द प्रॉब्लम। असद साहब इसमें मैंने जवाब देने हैं या कोई डिस्कशन होगी अब? मेरे ख्याल में काशिफ इफ यू कैन गो थ्रू, थोड़ा इस वक्त मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्लाइड शो भी ओपन है और वो तो मेरे ख्याल में अगर आप ही इसको टेक फॉरवर्ड कर लें तो। देखें वही जैसे मैंने कहा वो रिपीटेशन होगी कि शी इज 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास प्रेजेंट की है और उसके बाकी सब कुछ था, गायनी वालों ने हमारे पास भेज दिया, हमने टेस्ट करवाए उसमें ये आ गया। तो शी इज द कैंडिडेट। इस वक्त सीरियस ये नहीं कि इसको सिर्फ जो है अगर हम देख लें 400,000 के साथ इसका वायरल लोड जो आ रहा है, तो वही वाली बात है कि WHO का भी हम गाइडलाइंस को लेंगे। ई एंटीजन पॉजिटिव है, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसकी ज्यादा है, 70% तक जो है ट्रांसमिट हो सकता है। सो वी हैव टू टेक इट सीरियसली एंड वी हैव टू कन्विंस हर के दवाई उसे खानी पड़ेगी और के साथ साथ उसमें जो है उसको ये इसकी ट्रांसमिशन के रिस्क को रोकना है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में अगर मुझे कोई लगता है तो फाइब्रोस्कैन इज द वन थिंग जो कि की जा सकती है, लिवर बायोप्सी की जरूरत नहीं है। और ट्रीटमेंट जो है हम इसको सेकंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर सकते हैं।
और ट्रांसमिशन का जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्योंकि ई एंटीजन पॉजिटिव है, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिर्फ सरफेस एंटीजन पॉजिटिव। और वर्टिकल को ट्रांसमिशन को मिनिमाइज कैसे करेंगे? जस्ट टू स्टार्ट दिस न्यूक्लियोसाइड एनालॉग एंड सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और कंटिन्यू टिल 12 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। और ब्रेस्ट फीडिंग, यस, ट्रांसमिट टू तो गाइडलाइंस टू ट्रीट द चाइल्ड, वही हमने जैसे बताया कि इसमें एंटेकावीर हम दे सकते हैं अगर उनको क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस हो, जो पुरानी टर्म है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो, एएलटी ज्यादा हो, वायरल लोड ज्यादा हो, तो देन दीज आर द पेशेंट्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एचसीसी हो तो उनको किया जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट केस जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ये 6 साल का बच्चा है हमारे पास, अभी भी आ रहा है। इस बच्चे के साथ मसला यही था कि मदर वाज पॉजिटिव, इसका सरफेस एंटीजन पॉजिटिव था। तो जब अभी करवाया इसका हमने, तो इसका 30,000 जो है HBV DNA आया है, ई एंटीजन नेगेटिव है, डेल्टा इज आल्सो नेगेटिव, और लैब में इसका ALT भी हाई है, AST भी हाई है। तो इनकी फैमिली में तकरीबन काफी लोगों को है, तो F2 का स्कोर भी अब आना शुरू हो गया उसको। तो ये वो पेशेंट है जिसके ऊपर हमने यही है कि मैनेज करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट हिम ऑन ट्रीटमेंट रादर देन गोइंग फॉर लिवर बायोप्सी। और वो क्योंकि ALT AST भी ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री भी है, तो ये सारी जो था इसका था। तो मेरी तो प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होगी। नर्स अगर डिस्कशन करनी है तो वो हम फिर अब कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू काशिफ। उजैर, इफ यू कैन स्टॉप शेयर। मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा क्योंकि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, और स्पेशली WHO की जो मार्च में गाइडलाइंस आई हैं दिस ईयर, उसमें जो फोकस है वो अब ट्रीटमेंट की तरफ बहुत ज्यादा हो गया है। और उन्होंने स्पेशली जो रिसोर्स पुअर सेटिंग्स हैं, जिसमें हमारा मुल्क भी आता है, अफ्रीका भी आता है, उसमें कुछ लेवरेज भी दी है जो कि पहले हमें हासिल नहीं थी। तो आइडिया यही है कि चूंकि वर्टिकल ट्रांसमिशन इज द बिगेस्ट मोड ऑफ स्प्रेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, जिसमें मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। तो उसमें अब अगर तो आपके पास टेस्ट है, वायरल लोड माँ का 2 लाख यूनिट से ज्यादा है, तो यू गो फॉर ट्रीटमेंट, सेकंड ट्राइमेस्टर से ट्रीटमेंट शुरू करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सेटिंग्स होती हैं गांव में जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और यू नो ये इसके सबसे बड़े जज आप खुद हैं। अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, अगर आपकी एक्सेस ई एंटीजन तक है, ई एंटीजन सिग्निफाई करता है एनहांस्ड इन्फेक्टिविटी, बिकॉज दीज पीपल आर हाईली इन्फेक्शियस। तो वो भी ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर सरफेस एंटीजन के ऊपर आप उसका ट्रीटमेंट जो है शुरू कर दें फॉर द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जिस तरह हमने डिस्कस किया कि बाद में इट विल डिपेंड कि मदर क्वालिफाई करती थी, जिसमें ALT लेवल्स भी आते हैं, प्लेटलेट्स काउंट भी आती हैं, अल्ट्रासाउंड भी आपके पास एक्सेस होगा। तो अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करूं तो अगर एप्री स्कोर इज मोर देन 1, तो आप इसको ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएंगे। फाइब्रोस्कैन की बहुत लिमिटेड एक्सेस है। बहरहाल अगर फाइब्रोस्कैन में गालबन 7.6 किलो पास्कल जो है उसका कट ऑफ है, तो आप उसको उस पर ले जाएंगे। और रिमेंबर, at the time of delivery, the baby needs active and passive immunization. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले से होना होता है। हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं पता, तो ये आपको, जब अगर आप पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको इस चीज को जो है ना पहले से आपका होना चाहिए। सिमिलरली जो जो ट्रीटमेंट थ्रेशोल्ड्स हैं चिल्ड्रन के, वो भी अब नीचे आ रहे हैं। और उसमें डॉक्टर काशिफ ने इसको थोड़ा सा समराइज किया है। और काशिफ, ये गालबन एक क्वेश्चन है कि 6 इयर्स ऑफ एज पे आप एंटाकाविर दी थी या आपने TDF दी थी? तो इफ यू कैन। हम इसको एंटाकाविर पे चला रहे हैं इस वक्त। बच्चा जो है उसका BDNA भी नेगेटिव है, ALT भी ठीक है, और वो रेगुलरली 6 मंथ्स पे आता है मेरे पास। PCR उसका नेगेटिव हो गया, तो अब हम उसको PCR भी चेक नहीं करते, वी जस्ट गो विद रूटीन इन्वेस्टिगेशन में। LFT करवा ली, अल्ट्रासाउंड कर ली,
और जस्ट उसी के कंप्लायंस देखने के लिए बुलाते हैं। अदरवाइज अगर कंप्लायंस बेहतर हो तो वो, क्योंकि उसको खानी पड़ेगी, वो एंटेकावेर पे चल रहा है, वो गवर्नमेंट सेक्टर से हमें मिल रही थी तो हमने उसी पे रखा हुआ है। और वैसे भी एंटेकावेर अब तो मेरे ख्याल, अब रिसेंटली मुझे वो बता रहा था 700 रुपीज़ की जो है पूरे महीने की मिल रही है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो उसी पे ही चल रहा है बच्चा। जी, सर ये एनी एनी अदर क्वेश्चन? जी डॉक्टर भुट्टा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना, ये जो केस 6 ईयर चाइल्ड वाला है, डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें टैकावीर शुरू की है, तो ये भी लाइफ लॉन्ग ही चलेगी, क्या इसमें भी कोई चेंज आ सकती है? सर बात ये कि आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा लाइफ लॉन्ग। कहते थे कैसी आएंगी, तो आई, सस्ती भी आई। इस वक्त जो बना रहे हैं, हालांकि वो बना तो डेल्टा के लिए रहे हैं, उसमें वो सरफेस एंटीजन क्लियरेंस वाली ड्रग बना रहे हैं। जिस दिन वो ड्रग बन गई तो वो जो है एक रेवोल्यूशनरी ड्रग होगी जो कि बी और डेल्टा दोनों को खत्म करेगी, सरफेस एंटीजन। उस वक्त तक हमने उसका लिवर बचाना है, हमने उसे सिरोसिस से बचाना। और ये हमने देखा है कि सिरोसिस से बचते हैं। अनफॉर्चुनेटली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को बचाने के लिए ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, जिसको होना होगा ना बी में, क्योंकि सिरोसिस के बगैर भी हो जाता है। उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उसकी थोड़ी सी वो डिफरेंट है, सारी जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी और वो सारा कुछ वो हम नहीं रोक सकते, लेकिन सिरोसिस जो है प्रिवेंट हो सकती है इसमें। और आज की डेट में तो हमने बड़ी कोशिश की, ये 3 साल पे बंद करें, उस पे करें, वापस आ जाता है, तो लाइफ लॉन्ग ही चलेगी। क्या सर इसको टैकावीर 12 साल की उम्र तक दे दें, बाद में टीडीएफ पे शिफ्ट किया जा सकता है इसको? अगर वो उस पर नेगेटिव है तो क्यों चेंज करेंगे? साइड इफेक्ट उसके नहीं है ना टीडीएफ के साथ, तो फिर भी ये वाली बात है कि और रीनल क्लियरेंस को भी देखना है, इसके लिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। जी सर। अगर तो रिस्पांस ना आ रहा हो तो तब आप स्विच कर सकते हैं ना, रिस्पांस अगर आ रहा है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो इनकी अपनी वो है, ये एक दफा हम एक चीज कहते हैं कभी दूसरे कहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी रिसर्च तो है नहीं, तो हमने उनको फॉलो करना होता है। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछिए, मेरा जो पेशेंट एंटाकाविर पे चल रहा है, मैं तो स्विच नहीं करता अगर अनटिल अनलेस के कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं या अवेलेबिलिटी नहीं है ड्रग की। अदरवाइज तो ये सारी तीनों ड्रग्स एक जैसी हैं। बल्कि वो जो है टैफ जो है वो थोड़ी सी मुझे कमजोर लगती है। ये तो कहते हैं कि जी रीनल प्रो उसका ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप ये टीडीएफ और एंटाकाविर तो जबरदस्त ड्रग्स हैं दोनों। जी, थैंक यू सर। जी, इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपको लगता है कि एंटाकाविर पे कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, उसका मतलब ये है कि मरीज एंटाकाविर ले रहा है, पेशेंट इज कंप्लायंट विद द ट्रीटमेंट, और आपका वायरल लोड जो है वो इंक्रीज हुआ है या एएलटी वगैरह बढ़ने शुरू हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी एट दिस लेवल द पेशेंट शुड बी रेफर्ड टू द नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, क्योंकि वो ट्रिकी चीज हो जाती है तो वो उसमें। और जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए तो आई थिंक अगर आप इन टच होंगे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टीम है, तो देन द पेशेंट कैन बी फॉलोड अप एट द प्राइमरी केयर क्लिनिक। थैंक यू। मेरा ऐसा सब ये है कि अगर हम इसको लेके चलें, जैसे है आप अपने प्रोग्राम डायरेक्टर से बात करें कि सरफेस एंटीजन के साथ ही हम जो है ये वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए थोड़ा सा वर्किंग कर लें, कोई ऐसा सब करके देखें, क्योंकि उससे ये है कि हम बड़ा प्रिवेंट कर लेंगे। ये पहले भी बात एक दफा हो रही थी, डॉक्टर साहब से मेरी बात अल्ताफ साहब से हुई थी, तो वो यही कहते थे कि एक वक्त आएगा कि सरफेस एंटीजन पे होगा, और डब्ल्यूएचओ अब उस तरफ आ रही है। तो क्या हम इसको लेके अगर चलना चाहें तो मेरा ख्याल है कि हमें बड़ा इसका जो है फायदा होगा हमारे पेशेंट्स को भी। तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं उस हवाले से। जी जी, एग्रीड। ये एक सवाल है चैट में कि अगर हेपेटाइटिस सी आरएनए लोड इज आल्सो देयर अलोंग विद हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन देन क्वेरी, ये वैसे जी डिस्कस हो चुका है। काशिफ क्विकली अगर आप इस पे अपना। देखें, बात यह है कि हमें बहुत से लोगों ने जिस वक्त साथ उन्होंने कहा जी जब आप उसको डीए से ट्रीट करते हैं तो दूसरा एक्टिव हो जाता है। पर्सनली आई फील के मैंने नहीं ऐसा कोई ऐसा देखे। हम सरफेस एंटीजन अगर पॉजिटिव और बी डीएनए नेगेटिव है
तो हम सी को ट्रीट करेंगे। अगर बी डीएनए भी पॉजिटिव है तो फिर हम दोनों को ट्रीट कर सकते हैं। 3 मंथ्स के लिए सी आर एन ए को नेगेटिव करें और फिर उसके बाद इसको जो है एंटाकाविर पे भी आप उस पे सॉरी टेनिफोविर या उस पे एंटाकाविर पे आप डाल सकते हैं। मेरी पर्सनल प्रैक्टिस ये है कि मैं पहले सी को ट्रीट करता हूँ और उसके बाद साथ साथ चेक करता रहूंगा। अगर फ्लेयर आता है या बी एक्टिव होता है फिर तो मजबूरी है कि उसकी भी दवाई दें। अदरवाइज 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट दे के फिर हम बी की ट्रीटमेंट, अगर वो फुलफिल करता है क्राइटेरिया, तो फिर हम बी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। any other question? जी किरण, it's about time. आप देख लें, if there is no other question, if you have any announcements for further जो भी हमारी जी प्रोसीड था, तो आप काइंडली। जी अनाउंसमेंट यही है डॉक्टर सर के फॉर द न्यू WHO गाइडलाइंस वी विल बी अरेंजिंग अ स्मॉल सीरीज सून, और इसके लिए हम आपको पोस्टेड रखेंगे। और क्योंकि हमारे मोस्टली पार्टिसिपेशन जो हुई है वो थ्रू आई को रजिस्ट्रेशन ही हुई है, तो पार्टिसिपेंट कैन एक्सेस टू वेरियस सेशन और सो दे कैन कीप एक्सप्लोरिंग द आई एको। एंड थैंक यू डॉक्टर काशिफ. We are grateful and thankful to Parsa Trust team and Parsa Eco Pakistan. इसके अलावा डॉक्टर सर अगर आपकी कोई अनाउंसमेंट्स है तो अदरवाइज उजैर कैन कॉल ऑफ द मीटिंग. जी नहीं, थैंक यू सो मच. आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और आई थिंक we'll stay in touch with you. What I would suggest is कि this is not the end of story. आपके पास अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस, विल प्रॉब्ली बी चेंजिंग द टाइम, क्योंकि इस ग्रुप को अगर मॉर्निंग या आफ्टरनून टाइम सूट करता है, दे विल प्रॉब्ली यूज दैट टाइम. तो आपके जो केसेस हैं, जो आपकी प्रैक्टिस में रियल लाइफ केसेस हैं, अगर आप वो हमसे शेयर कर दें, लेट्स से अगर हमारे पास 2 केसेस आ गए हैं, तो देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी विल अरेंज अ सेशन मे बी वंस अ मंथ. So we will like to carry on this this activity. Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर. मेरी स्टूप्स वालों को ये बहुत सूट करता है कि हम इसको टाइम को चेंज करें. और से पूछ रहा था कि जी आई एज्यूम के उन वो अगर चाहेंगे तो उनके लिए हम कोई छोटे सेशंस या सीरीज स्टार्ट कर सकेंगे. सो उजैर यू कैन कॉल ऑफ द मीटिंग. थैंक यू वेरी मच. Sure, ma'am. Allah Hafiz. One comment from my side. जी Uh, जरूर. um, this is excellent meeting. I think so. We have clear very important points. The special things which I have come to know is the counseling of the female and the siblings. The counseling is very important in all the hepatitis B management, especially in pregnancy. So they should be off the fear of this treatment, and they need to diagnose and need to have the investigation. At the time is, I think the 10 o'clock is very is a, suitable time for most of the people. And thank you very much. थैंक यू वेरी मच. Thank you. हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।